Hello Urvashi, good to see you again. How are Hello, you? sir. Sir, I'm good. How are you? Okay, how is your mom now? Sir, she's good now. She has got a little bit of mobility back from her face. All right. So you missed a test. You know that, right? Yes, sir. I'm sorry. I'll do it No, sometime no, this no, week. don't say sorry. Actually, my Hey, no exams are need going to on. say sorry. Yeah, you just see the recordings of the lectures, whatever you Oh, missed. sir, I'll Exams do is that. okay now. Yeah. How about other people? How is everyone? Kids? Very few people have joined. Where are others? So, a very important chapter we are learning. Students they face or they feel this chapter a little difficult compared to others. You know, yes. Upamanyu, what do you feel? How is the chapter? How is this gone? Upamanyu is there, no? Say something. Yes, How you are feeling the chapter? Is sir, it ठीक है. tough, difficult? Little bit chemistry is there in that, no? Anyway, so are you ready, kids? Shall we continue? Huh? So today's topic. Yes, sir. Which topic? Which topic are we going to learn today? Do you remember, kids? Tell me. Yes. This structure you remember? What is this structure about? Tell me. What is this diagram about? Can you tell me? Yes, children. What is this diagram about? Forgot? Yes. You don't remember whose diagram? What's diagram is this? Upmanyu? Shrikant has not joined? Yes, tell me. Come on, quickly. Fatafat. Say something. Is my voice audible? Can you all hear me? Hmm? हेलो जैनब आवाज आ रही है मेरी बोलो Yes, sir, you're audible. Hold on for a moment, kids. I'm connecting. Can you all hear me now? Please tell. हाँ बच्चों अभी आवाज है बराबर Is it? Okay, please tell me. Otherwise, I'll not use only that. Urvashi, Yes, sir. चलो हो जाओ शुरू. I hope now you all can hear me. Yes? Yes, sir. No? Yes, sir, we can hear you. ठीक है चलो फिर हो जाओ शुरू. मैं पूछ रहा था 3 टाइप्स लिपिड्स के कौन से याद करो. कौन से 3 टाइप के लिपिड्स के सिंपल लिपिड्स conjugated lipids and derived lipids. So you remember this and this. Yes, simple lipids we already studied. Esters, remember that derivatives of esters, conjugated
lipids are what? Examples we have studied lecithin. Do you remember this lecithin structure also? And when you say derived lipids, this includes one only, which is this cholesterol. And how I told you to remember this? क्लियर है ना? आवाज मेरी बताओ तो बच्चों, आवाज आ रही है बराबर? Yes, sir. देखो इसमें हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम मैंने एक लॉजिक बताया था. जैसे हम लोग कोई घर बनाते हैं तो फर्स्ट विल बी अ ग्राउंड फ्लोर. तो ये ग्राउंड फ्लोर में दो कमरे बनाए हैं, इक्वल साइज के हैं. दिस इज हेक्सागोनल, राइट? नाउ कम टू द फर्स्ट फ्लोर. Now on first floor, we'll construct two rooms. This is similar to the ground floor. This is small in size. This is hexagonal. This is pentagonal. Yes or no? Can you hear me? Is it clear? Hexagonal, pentagonal. And now here is a balcony. This balcony is also 1, 2, 3, 4, 5. Pentagonal only, but it is not closed. It is open. And here is the luggage or something kept in the balcony, you can remember. So this is the structure you can remember for cholesterol. Is this clear? Please tell me. बोलो बच्चों, समझ में आया? हाँ सर. हेलो, ठीक है. तो lecithin का भी स्ट्रक्चर मैंने बताया था. I hope everybody of you remember that how that lecithin can be drawn. याद है बच्चों? Do you wanna draw it with me? एक बार और बताऊं या फिर आता है आप लोगों को? बताओ. It's your choice. बताओ तो. Hello. Come on children, tell me. lecithin वाला स्ट्रक्चर वापस बताऊं क्या, या फिर आता है आप लोगों को? याद है? कहाँ होता है ये lecithin? आपका फॉस्फोलिपिड है ये. Phospholipid which is present in the plasma membrane. Am I right? कहाँ होता है ये? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है. तो I hope you all remember the structure of this, kids. याद है क्या? 3 स्टेप्स में बोला था इसको मैंने. पहले स्टेप में क्या होगा? पहले डाइग्लिसराइड्स बनता है, फिर सेकंड स्टेप में उसमें फॉस्फेट अटैच होता है, और थर्ड स्टेप में उसमें कोलिन अटैच होता है. डू यू रिमेंबर दैट और नॉट? प्लीज टेल मी. हेलो बच्चों, कुछ पूछ रहा हूं मैं, बोलो तो. Yes, sir. याद है ना? तो नो नीड टू रिपीट इट. चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ विल टॉक अबाउट today's small part is there in your textbook. If you go through, it's about primary and secondary metabolites. Can you see? If you open your textbook, you will see this topic there: primary and secondary metabolites. ठीक है बच्चों, सुन रहे हो? क्या होता है ये सुन लो. A small part. Primary metabolites means those biomolecules which have specific function, particular function. Did you get this? What are primary metabolites? Those biomolecules which perform specific function, or we know their function, perform specific function. They are called as primary metabolites. All right? Is this clear? Please tell me. आवाज बराबर आ रही है ना मेरी? आवाज बराबर आ रही है मेरी? बताओ. Is it clear? Yes, sir. It is clear. Yes, sir. तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कौन होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस या बायोमोलिक्यूल्स जिनका पर्टिकुलर फंक्शन होता है और हमें पता है दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन. तो जो बायोमोलिक्यूल्स हम लोग अभी पढ़े हैं वो सब एक्चुअली प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ही है. फॉर एग्जांपल योर कार्बोहाइड्रेट्स एंड देयर मोनोमर्स आल्सो. कार्बोहाइड्रेट्स के यूनिट्स आल्सो व्हिच मे बी मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, वो सब भी इसी कैटेगरी में आएंगे. प्रोटीन्स एंड देयर मोनोमर्स मतलब अमीनो एसिड्स. ओके. देन when you say fats, so fats and their monomers मतलब fatty acids and glycerol वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं. Similarly, you also can say your nucleic acids. What do you mean by this nucleic acid बच्चों? इनका परसेंटेज का एक टेबल दिया है, वो लर्न करना है आप लोगों को. मैंने आप लोगों को बताया था पिछले क्लास में. वाटर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स कितना होता है हमारे सेल में, याद है क्या? बताओ तो. आज हम लोग ये न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ने जा रहे हैं, बट बिफोर दैट एक 5-10 मिनट का टॉपिक है, इसको मैं कवर करूं.
तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कौन है, जो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारे बॉडी में. तो न्यूक्लिक एसिड्स मतलब कौन बच्चों, योर डीएनए एंड आरएनए, इनको ही हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि डीएनए का फुल फॉर्म ही है ना, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए में राइबोज न्यूक्लिक एसिड. एम आई क्लियर विद दिस? प्लीज टेल मी बच्चों, समझा? ठीक है. तो अब इनमें इनके अलावा भी कुछ और बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे बॉडी में या प्लांट्स के बॉडी में बेसिकली तैयार होते हैं, बट दे आर नॉट यूजफुल टू देम बट कैन बी यूजफुल टू अस. तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन होते हैं बच्चों? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर दोज substances which are produced in the bodies of plants, bodies of animals, but they do not have any specific function. They do not have any specific role to perform. Did you get me? Please tell. Yes, sir. Great. Okay, or we can also say that their role is not clearly known to us. Am I clear? Their role is not yet clear to us. Now let's talk about some examples. So for example, the best example is your morphine. Do you know what is this? Morphine, or you say caffeine, cocaine. Have you heard these names, बच्चों? बताओ मुझे, सुना है क्या ये सब नाम आप लोगों ने? Yes. बोलो दो. तो ये क्या है? सब ड्रग्स है, पता है ना? कोकेन, मॉर्फिन, which are obtained from particular plants. जैसे morphine is obtained from one plant called as a poppy plant. Okay, poppy plant. उसी को अफीम भी बोलते हैं हम लोग. मॉर्फिन को ही हम लोग अफीम बोलते हैं. कोकेन you must be knowing, उसको कोक या क्रैक एक और नाम से जाना जाता है. It is obtained from one plant. प्लांट का नाम होता है एरिथ्रोजाइलम कोका. तो ये प्लांट से ही मिलता है अपने को. कैफीन वी गेट फ्रॉम अ प्लांट, यू नो दैट, कॉफी प्लांट, थिया साइनेंसिस, यू नो दैट. तो ये सब प्लांट से मिलता है, बट वी डोंट नो दैट व्हाट इज द रोल ऑफ दीज सब्सटेंस इन प्लांट बॉडी. ये हम लोग यूज कर सकते हैं या फिर बाकी एनिमल्स यूज कर सकते हैं इसको एज अ यू नो ड्रग्स, एज अ फूड. हम लोग कॉफी वगैरह स्टिमुलेंट करके यूज करते हैं, वो हमें पता है, पर प्लांट्स में क्या रोल है अभी हमें नहीं पता है. Another example देखो, you know about nicotine? बोलो. So nicotine is present in the tobacco plant. तो ये भी एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जो प्लांट्स में प्रोड्यूस होता है, बट प्लांट को यूजफुल नहीं होता है. क्यों तैयार होता है मालूम नहीं हमें, बट वी कैन यूज इट, नॉट बाय प्लांट्स बट यूज्ड बाय अस. एम आई क्लियर विद दिस किड्स? प्लीज टेल मी. तो कुछ साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं कि ये जो निकोटीन है या फिर जो बाकी के सब्सटेंसेस है वो इंसेक्ट रिपेलेंट का काम करते हैं. व्हाई व्हाट सम पीपल से कि निकोटीन एक्ट्स एज इंसेक्ट रिपेलेंट. ओके, मान लिया, चलो इंसेक्ट रिपेलेंट का काम करता है. तो इट शुड बी प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स, नो, बिकॉज ऑल प्लांट्स नीड resistance against insects. So other plants do not have it. That means they must have some other substance. तो यहाँ पे ये थियरी नलिफाई हो जाती है या फिर यूजलेस हो जाती है. समझ में आया क्या? बताओ तो. हाँ बच्चों, निकोटीन के बारे में, रबर के बारे में भी आपने सुना होगा. रबर इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स, और ये इम्परमिएबल होता है गैसेस के लिए या फिर और सब्सटेंसेस के लिए. तो इसका तो कोई रोल नहीं होता है प्लांट बॉडी में, बट इट इज प्रोड्यूस्ड, एंड सच अ सब्सटेंस विल बी कॉल्ड एज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट. एम आई क्लियर विद दिस बच्चों? प्लीज टेल मी, बताओ तो. कम ऑन, इज इट क्लियर एवरीवन? प्लीज. ठीक है, तो याद रखना है, ये छोटा सा टॉपिक है. कई सारे और सब्सटेंसेस हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट में ही आएंगे. विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन, ये आपको 12th में आएगा. विनक्रिस्टीन and vinblastine, these are called as anti-leukemia drugs. मतलब ये ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं, और इसका सोर्स है आपका कैथरंथस प्लांट. यू नो कैथरंथस प्लांट, इसी को हम लोग बोलते हैं विंका रोजिया. सदाफुली इन मराठी, सदाबहार इन हिंदी,
आप लोगों ने देखा होगा 5 पेटल्स आर देयर पिंक कलर के या फिर व्हाइट कलर के, इसके 5 पंखुड़ियां होती है इसकी। इट ग्रोज थ्रू आउट ईयर, इसलिए इसको सदाबहार बोलते हैं। ये वाला याद आया बच्चों? इस प्लांट से मिलते ये 2 ड्रग्स, विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन, एंड यूज्ड टू ट्रीट ब्लड कैंसर और ल्यूकेमिया। एम आई क्लियर? प्लीज टेल मी। हेलो बच्चों, बताओ मुझे। Yes, sir. एवरीवन इज कॉन्फिडेंट? उर्वशी, आर यू ओके विद दिस? Yes, sir. चलो बस इतना ही था इस छोटे से पार्ट के बारे में। अब आगे आ जाओ, चलो। सुनो, नेक्स्ट टॉपिक वी विल बी टॉकिंग अबाउट न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए आरएनए वाला पार्ट। आर यू रेडी? हाँ बच्चों, Yes, sir. let's begin then with the next topic, next parameter, which is about your nucleic acids, मतलब डीएनए एंड आरएनए। कितना परसेंट होता है ये बताओ मुझे, बताया था पहले। न्यूक्लिक एसिड्स कितने परसेंट होते हैं हमारे सेल में? न्यूक्लिक एसिड्स इनको डिस्कवर किया था बाय फ्रेडरिक मिस्चर। परसेंटेज याद रखो, 5 to 7% ऑफ द टोटल सेल होते हैं। ये आपके एनसीईआरटी के वो टेबल में दिया हुआ है, देख लो उसको। तो इसको नाम कौन दिया था? दिस वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिस्चर। ऑलराइट, न्यूक्लिक एसिड्स वर डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिस्चर। आपको 12th स्टैंडर्ड में डिटेल में पढ़ना है। यू हैव गॉट सेम टॉपिक इन योर 12th स्टैंडर्ड, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इज द नेम ऑफ द चैप्टर, जिसमें आप लोग ये डीएनए आरएनए सब डिटेल में पढ़ोगे। नाउ न्यूक्लिक एसिड्स आर macrobiomolecules. What do you mean by macrobiomolecules? They have got more molecular weight. उनका molecular weight ज्यादा होता है, तो ये macrobiomolecules हैं. Okay, but when it comes to their units, what do you call units of nucleic acids? Do you know, kids? They are called as a nucleotides, and nucleotides are microbiomolecules. Did you get the difference? Please tell me. जैसे हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स मैक्रो में पढ़ा, बट उसका मोनोमर्स माइक्रो होता है। प्रोटीन्स मैक्रोबायोमोलेक्यूल है, पर उसका यूनिट क्या होता है? माइक्रोबायोमोलेक्यूल होता है। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी। बोलो बच्चों, दिस इज द यूनिट ऑफ योर डीएनए एंड आरएनए, अ लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोटाइड्स। आवाज आ रही है ना मेरी बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विल फॉर्म योर डीएनए एंड आरएनए। तो ये उसका यूनिट है। तो यूनिट माइक्रोबायोमोलेक्यूल है, बट जब उसका पूरा लॉन्ग चेन बनेगा तो वो मैक्रोबायोमोलेक्यूल। इज दिस क्लियर? प्लीज टेल मी। हाँ Yes, बच्चों, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी इसके बारे में, इसके डिटेल्स पढ़ते हैं अभी। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट न्यूक्लियोटाइड्स, पहले हम लोग पहले ये माइक्रोबायोमोलेक्यूल पढ़ेंगे, उसके बाद में वो चेन कैसे बनाते हैं वो पढ़ते हैं। So let's talk about nucleotides and nucleosides first. I'm erasing this part. तो पहले हम लोग पढ़ते हैं units of DNA and RNA, उसके बाद में हम लोग DNA और RNA को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके बच्चों? So nucleosides and nucleotides दोनों एक साथ में ये पढ़ते हैं अपन लोग। nucleosides and nucleotides. See, जब भी हम लोग बोलेंगे ये डीएनए आरएनए या उसका न्यूक्लियोटाइड जो यूनिट है ना बच्चों, वो 3 केमिकल सब्सटेंसेस का बना है। When you say this nucleotide, it is composed of 3 main chemical substances. कौन से 3 केमिकल सब्सटेंसेस हैं? तो सबसे पहला केमिकल सब्सटेंस होता है इसमें पेंटोज शुगर। क्या होता है बच्चों, बोलो तो? पहला केमिकल सब्सटेंस है पेंटोज शुगर। फिर जो दूसरा केमिकल सब्सटेंस रहेगा उसका नाम होता है नाइट्रोजन बेसिस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू लिसनिंग? Yes, sir. और तीसरा केमिकल सब्सटेंस होता है फॉस्फोरिक एसिड। तो ये जब 3 सब्सटेंस एक साथ में जुड़ेंगे तो बनेगा आपका न्यूक्लियोटाइड, जो डीएनए का और आरएनए का यूनिट है। ठीक है बच्चों, क्या समझा? पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट इक्वल्स टू न्यूक्लियोटाइड।
अगर मैं इसमें से फॉस्फेट को हटा दूं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड। इज दिस क्लियर? प्लीज टेल मी। मतलब अगर ये फॉस्फेट को साइड में कर दो तो बचेगा आपका न्यूक्लियोसाइड। करेक्ट समझा क्या? प्लीज टेल मी दिस इज क्लियर टू ऑल और नॉट? Yes, sir. पेंटोज Yes, sir. plus nitrogen base togetherly forms nucleoside, and न्यूक्लियोसाइड में अगर हम लोग फॉस्फेट ऐड करेंगे, फॉस्फोरिक एसिड, तो क्या बन जाएगा आपका? न्यूक्लियोटाइड। अब समझ में आया सबको? बताओ मुझे, प्लीज टेल मी। फर्क समझा दोनों में? यस किड्स, ओके। तो अब देखो इधर तीनों का केमिकल स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं कैसा दिखता है ये। तो व्हेनेवर यू से पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर में क्या होता है, कैसे होता है? पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन वाला शुगर। तो इसके 2 टाइप्स है पेंटोज शुगर के। आप लोगों को पता है कौन से 2 टाइप्स? डीएनए में जो पेंटोज शुगर है उसमें एक ऑक्सीजन कम होता है, आरएनए में जो पेंटोज शुगर है उसमें एक ऑक्सीजन ज्यादा होता है। तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? याद करो, जो डीएनए वाला पेंटोज शुगर है उसको बोलते हैं, याद करो, ये डीऑक्सी राइबोज शुगर। डू यू रिमेम्बर दिस और नॉट? डीऑक्सी राइबोज शुगर, डी मींस एब्सेंट, ऑक्सी इज ऑक्सीजन। तो उसमें एक ऑक्सीजन कम होता है आरएनए के शुगर से। तो इसका फॉर्मूला अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या होता है? C5H10O4। Am I clear with this? और अगर Yes, मैं sir. आरएनए की पेंटोज शुगर की बात करूं तो क्या होगा? इट विल बी राइबोज शुगर। तो राइबोज शुगर में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होगा तो फॉर्मूला होगा उसका C5H10O5। Am I clear with this? Please tell me. बोलो बच्चों। Yes, दो sir. शुगर, इसका डायग्राम भी आई होप यू ऑल रिमेम्बर। इस शुगर का डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूं, दोनों का किसी का भी ड्रॉ कर सकते हैं। चलो देखो, इधर ऑक्सीजन सेंटर में होता है और ये ऑक्सीजन के राइट साइड में होता है कार्बन 1। फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5। याद आया ये वाला बच्चों? दोनों में कंबाइन है, बस एक ऑक्सीजन कम और ज्यादा होएगा। तो कैसे? अब इधर ये आ गया HOH, ये अल्फा ये वाला शुगर है कि बीटा? बताओ मुझे बच्चों, इज दिस अल्फा और बीटा? याद करो, फटाक से आना चाहिए दिमाग में। ये हो गया HH, दिस इज योर HOH, दिस इज योर H, CH2OH। याद आया कि नहीं? बताओ तो मुझे। अल्फा क्यों बोला मैंने इसको, या इसको बीटा क्यों नहीं बोला? बताओ तो। हेलो चिल्ड्रन, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. फिर आओ, मैं बताओ आंसर इसका। अल्फा और बीटा में क्या पढ़ा था हमने? ये OH अगर ऊपर होगा और H नीचे होगा तो बीटा। बीटा मतलब बाइट, जो बाइट करता है वो ऊपर से बाइट करेगा ना, तो ऐसे याद रखने का। अगर नीचे OH है तो फिर वो अल्फा। इज दिस क्लियर और नॉट? प्लीज टेल। Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया आपका अल्फा ग्लूकोज। अब ये हो गया एक, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कम है इधर, तो ये हो गया आपका डीएनए वाला शुगर। इसमें OH कर दो तो हो गया आरएनए वाला शुगर। कोई शक किसी को? बताओ मुझे बच्चों। एनीबॉडी गॉट एनी डाउट? No, हेलो, sir. ऑलराइट। अब आगे देखो, नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट नाइट्रोजन बेस। अब ये नाइट्रोजन बेसेस क्या होते हैं? नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो रिंग लाइक होते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है नाइट्रोजन बेसेस के बच्चों? दे आर रिंग लाइक कंपाउंड्स। ठीक है, दे आर रिंग लाइक कंपाउंड्स व्हिच may exist in 2 rings। या तो वो मोनोसाइक्लिक हो सकते हैं, मतलब एक रिंग के हो सकते हैं, दे कुड बी मोनोसाइक्लिक, और दे कुड बी डाइसाइक्लिक। मीनिंग समझ में आया? मोनोसाइक्लिक मतलब एक रिंग वाले, डाइसाइक्लिक मतलब 2 रिंग वाले, और इनमें नाइट्रोजन होता है। अब अगर रफ डायग्राम ड्रॉ करूं मैं तो इट विल लुक लाइक दिस। ये हो गया सिंगल रिंग। डाइसाइक्लिक में ये हो गया डबल रिंग। इज दिस क्लियर? प्लीज टेल मी।
4 5, तो ये होता है डाइसाइक्लिक वाला स्ट्रक्चर। अब इसमें टोटल 5 नाइट्रोजन बेसिस हैं और वो 5 नाइट्रोजन बेसिस आपने ऑलरेडी सुने हुए हैं। कौन से वाले? ATCGU, डू यू नो दैट बच्चों? एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, यूरासिल। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बताओ मुझे। हेलो बच्चों। Yes, sir. ATCG, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन। तो अगर मैं यहाँ उसको क्लासिफाई करूं तो मोनोसाइक्लिक में 3 आते हैं, डाइसाइक्लिक में 2। तो ये एडेनाइन आपका डाइसाइक्लिक में आता है, एडेनाइन, जिसको हम लोग ए से सिंबलाइज करते हैं। देन गुआनाइन, दिस विल बी जी। बचे हुए 3 जो है वो कौन से हैं? थाइमिन, टी, थाइमिन, yes, this is T. साइटोसिन, साइटोसिन इज C। और एक और बचा है यूरासिल। तो सर मेरे को एक यूरासिल, डाउट है पूछ ना, कम ऑन, गो सर। अहेड। ए बॉन्ड्स विद टी, जी बॉन्ड्स विद सी, तो यू मतलब क्या करता है? अरे ये एक दूसरे के साथ में पेयर करते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर में। जब हम लोग डीएनए का डायग्राम देखेंगे ये वाला, हाँ इस डीएनए के डायग्राम में आपको ये 3 केमिकल सब्सटेंसेस मिलेंगे, जिसमें से ये जो पेंटोज शुगर है और फॉस्फेट है, ये इसका बैकबोन बनाते हैं। और ये जो हाँ नाइट्रोजन सर, बेसिस, और बीच में आता है। हाँ, सीढ़ी के जैसा अरेंज हो जाते हैं, मतलब दे आर हाँ लाइक अ सर, लैडर। तो वही ATGC आ गया, तो यू किधर होता है, वही मेरा डाउट था। अभी देखो, हमारे पास 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स हैं, डीएनए एंड आरएनए। RNA, हाँ। अगर डीएनए है तो डीएनए में हम लोगों को ATCG मिलते हैं। आरएनए में T इज रिप्लेस्ड बाय U, ये याद रखो। आरएनए में जो Okay. नाइट्रोजन बेसिस है AUCG। इज दिस क्लियर? प्लीज टेल मी Any particular reason Yes, sir. कि that there is no as such reason. Just remember that DNA में 1 नाइट्रोजन बेस थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल। तो अब ये यूरासिल, हमेशा okay. ऐसे पेयर करते हैं, एक प्यूरिन एक पाइरिमिडिन के साथ में पेयर होता है। और सर अब AU का बॉन्डिंग में डबल बॉन्ड होता है। वही यहाँ ना, ए टी हमेशा डबल बॉन्ड, सी जी हमेशा ट्रिपल बॉन्ड। तो जितना ए होगा सर, उतना ही टी होगा, जितना सी होगा उतना ही जी होगा। इसके बारे में हम लोगों को पूरा चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड में, एंड यू विल लव दैट चैप्टर। मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। अभी यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन है उसका। तो हमेशा याद रखो, एक प्यूरिन हमेशा एक पाइरिमिडिन के साथ में यहाँ पे बॉन्ड बनाता है। ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। और सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये याद रहेगा। ए पेयर्स विद टी, सी पेयर्स विद जी, विथ डबल कोवेलेंट बॉन्ड या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड या डबल हाइड्रोजन बॉन्ड या ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जितना ए होगा उतना ही टी होगा डीएनए में। इज दिस क्लियर? प्लीज टेल मी। तो अगर मैं बोलूं एडेनाइन का परसेंटेज डीएनए में 20 है, तो गुआनाइन का परसेंटेज कितना होगा श्रीकांत? बोल। सर सुना मैंने वापस क्या? बोलते तो बहुत अटक रहा है सर। नहीं सर, मेरा प्रॉब्लम है नेटवर्क का, आप बोलो। If adenine is 20%, हाँ what would be the percentage of guanine in this DNA? 80%। नहीं 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 नहीं, रुको रुको। 20 एक सेकंड, 80/3 होगा क्या सर? अरे बच्चे, अगर एडेनाइन 20% है तो थाइमिन भी 20% होगा, तो 20-20-40 हो गया। अच्छा 30% सर। 60, तो उसमें से 30% ये आ गया। अब समझा? हाँ सर। याद रखो। तो दिस इज सिंपलेस्ट क्वेश्चन व्हाट आई सिंपलेस्ट थिंग व्हाट आई टोल्ड यू। चलो आगे सुनो। अब ये शुगर और नाइट्रोजन बेस साथ में आएगा तो क्या बनता है? हमने पढ़ा था न्यूक्लियोसाइड बनता है, याद आया? हाँ बच्चों, तो ये one of the nitrogen bases will attach to this sugar at carbon number 1। पर उसके पहले एक और क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है, और वो है कि यहाँ पे नाइट्रोजन कौन से कार्बन पे होता है। अभी इसका डिटेल स्ट्रक्चर आपको अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है बच्चों? सुन रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? अरे आवाज मेरी बराबर से? कैन यू हियर मी? प्लीज टेल उर्वशी। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो अभी देखो,
These are nitrogen compounds. No, so where nitrogen is present, that you need to remember, kids. तो जो प्यूरिन्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन इज प्रेजेंट एट 4 प्लेसेस, कार्बन नंबर 1379. इसमें प्यूरिन्स में, इनको ही हम लोग बोलते हैं प्यूरिन्स, याद रखो. जिनमें डबल रिंग है दे आर कॉल्ड एज प्यूरिन्स. जिनमें सिंगल रिंग है दे आर कॉल्ड एज पायरिमिडिन्स. Am I clear with this? Yes, children. Purines are double ring compounds. Pyrimidines are single ring compounds. Purines में nitrogen is present at 4 places. Which 4 places now? So those 4 places are carbon number. See, N2 is present. This could be also your question. Huh? Nitrogen is present at carbon number 1379. Is this clear to you? Please tell me. 1379 में. And pyrimidines में nitrogen is present. N2 is present at carbon number 1 and 3 only. 1 and 3 only. Is this clear? Please tell. बोलो बच्चों, Yes, समझ में आया sir. क्या? तो अब ये एक नाइट्रोजन बेस, कोई भी एक शुगर के साथ में अटैच होता है यहाँ पे कार्बन नंबर 1 को. Any one nitrogen base will attach here. Now it could be A, it could be T, it could be C, it could be G. तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा दोनों के बीच में, और इस बॉन्ड को बोलते हैं बच्चों ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. याद रखना है आपको ये. इसमें भी H2O रिलीज होगा. आपको याद नहीं रखना है कैसे बनेगा. अब एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा नाइट्रोजन यहाँ पे अटैच होता है. तो अगर ये प्यूरिन है तो 9 नंबर नाइट्रोजन यहाँ अटैच होगा. अगर पायरिमिडिन है तो फर्स्ट नाइट्रोजन यहाँ अटैच होगा. याद रहेगा? बताओ मुझे. विल यू बी एबल टू रिमेम्बर दिस? Come on, tell me. Hello, please tell. हाँ कि ना? बच्चों, open your mouth. Tell Yes, me. हाँ sir. हाँ. तो ये अगर पायरिमिडिन जुड़ रहा है उसके साथ में तो N1 से जुड़ेगा, मतलब ये नाइट्रोजन से जुड़ेगा. अगर प्यूरिन जुड़ रहा है तो ये N9 से जुड़ेगा. ठीक है. और दोनों के बीच में बॉन्ड कौन सा आएगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. इज दिस क्लियर बच्चों? बताओ मुझे, बॉन्ड कौन सा है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. अब ये दोनों एक साथ में आए हैं और अपना बन गया न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि हमने वही पढ़ा था. पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस इज इक्वल्स टू न्यूक्लियोसाइड. अब इसमें कौन सा वाला नाइट्रोजन बेस जुड़ता है? ऑन दैट बेसिस वी कैन हैव 5 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स. कौन से 5 टाइप्स न्यूक्लियोसाइड्स के हो सकते हैं बच्चों? बताओ मुझे. मैं इरेज करूं क्या? आई वांट अ स्पेस बच्चों. Shall I erase this part? Shall I erase this part? Hello, Shubhankar, tell me. Shall I? अरे बोलो तो बच्चों. आशना, आवाज आ रही है मेरी? Yes, Ashna. Can you hear me? Please tell. Hello, can you all hear me बच्चों? Yes, sir, we can hear you. Okay, सुनो अभी. तो कौन सा वाला नाइट्रोजन बेस अटैच हो रहा है? ऑन दैट बेसिस वी हैव गॉट 5 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स. कौन से 5 टाइप्स रहेंगे? देखो, पेंटोज शुगर प्लस एडेनाइन होगा. अगर पेंटोज शुगर प्लस एडेनाइन होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एडेनोसाइन. डिड यू गेट दिस? पेंटोज शुगर प्लस एडेनाइन विल फॉर्म एडेनोसाइन न्यूक्लियोसाइड. अगर पेंटोज शुगर के साथ में आपका क्या ऐड करें? जी, तो क्या बनेगा? गुआनोसाइन. आर यू अंडरस्टैंडिंग बच्चों? एजी हो गया. अभी बच्चा हुआ पायरिमिडिन से. देखो, पेंटोज शुगर प्लस थाइमिन होगा तो क्या बोलेंगे हम लोग उसको? यस, विल कॉल इट एज थाइमिडिन. क्या बोलेंगे हम लोग उसको? थाइमिडिन. यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, याद रखो. पेंटोज शुगर प्लस साइटोसिन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? साइटिडिन. पेंटोज शुगर प्लस यूरासिल होगा तो क्या बनेगा बच्चों? Uracil. यूरेडिन. कोई शक इसके बारे में किसी को? बोलो बच्चों. 5 टाइप के न्यूक्लियोसाइड्स बन गए. कौन से 5 टाइप के न्यूक्लियोसाइड से समझ में आया? एडिनोसाइन, गुआनोसाइन, थाइमिडिन, साइटिडिन, यूरेडिन. कोई शक यहाँ तक किसी को?
बोलो बच्चों फटाफट. Any doubt? Anybody? Anybody's buddy? Girls, हाँ कि ना बताओ मुझे फटाफट. Comfortable? Bhumi, yes or no? Please tell. Bhumi, can you hear me? Bhumi, are you there? Are you listening? Hello, बच्चों. Please respond. उपमन्यु आवाज आ रही है क्या? Am I audible? Kids, Yes, sir, you're please. audible. हाँ तो इतना लेट रिस्पॉन्स दे रहे हो आप लोग, मैं कब से पूछ रहा हूँ. तो सुनो, तो अब आ जाओ न्यूक्लियोटाइड पे. तो न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंट है? न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फोरिक एसिड ऐड होगा. फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है बताओ मुझे बच्चों. डू यू नो फॉस्फोरिक एसिड? हैव यू हर्ड? बोलो तो. हेलो,